Hello my dear students, I hope you all are fine. So in this video I will be teaching you chapter number 3, which is how many squares. So before I start with the questions and answers, let's just see the key ideas for review, which is very important. First one is about the perimeter of the figure. So what it is, length of the boundary of a figure is called the perimeter of the figure. Okay, so I'll explain you in a diagram. So for example, this is the figure which you have been provided with. एंड आपको बोला है कि पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर मतलब इसकी जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ये दो लेंथ का मेजरमेंट एंड ये दो ब्रेथ का मेजरमेंट. सो इसको आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज पेरीमीटर. ठीक है. एंड अगर आपको बोला गया है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया में देयर इज अ डिफरेंस. सो आई हैव टोल्ड यू पेरीमीटर इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर. सो ऑल द बाउंड्रीज, ऑल साइड्स की आपको क्या पता होनी चाहिए, मेजरमेंट पता होनी चाहिए, एंड only in that way you can find out the perimeter of a figure. If you have been asked find out the area of the figure, if you have been asked find out the area of the figure, first I'll tell you what is the definition. See, here is the definition of area. What is it? The measure of the total surface of a figure is called its area. Total surface measure. ठीक है. तो आई शो यू द सेम फिगर. फॉर एग्जाम्पल इसी फिगर का आपको बोला गया है कि फाइंड आउट द एरिया. तो एरिया मतलब आपका जो मेजरमेंट है टोटल सरफेस, अंदर जितना भी मेजरमेंट है, ये जो दिख रहा है आपको अंदर अंदर काफ़ी एरिया है ना, ये जो पूरा ब्लैंक है, that is what you have to find out. So perimeter is outer boundary and area is what? The measure of total surface of a figure. तो total surface क्या है आपका, ये अंदर जितना भी आपका एरिया है, ये फुल एरिया आपका जितना भी है, that you have to find out. Again I'm telling you, perimeter means boundary of a figure and area means inside, the total surface, the total measurement of the surface. अंदर जितना भी एरिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, full area you have to find out. So that is the difference between perimeter and area. Okay. So yes, now in the second point, perimeter of rectangle, the formula is given. तो अगर आपको वो so you have to what you have to do, this is the formula, perimeter of rectangle, which is 2 into length plus breadth. You have to remember these formulas. And perimeter of triangle is sum of the lengths of 3 sides. ठीक है. तो perimeter of triangle, so for I had already told you, I'll see if I have the figure of triangle. Yes, I have this figure. This is triangle है ना. So perimeter of triangle, perimeter I have told you what is it, boundary of a figure. तो इसकी boundary, ये जो I'm pointing out है ना, this side and this side. पेरीमीटर आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, इन तीनों की बाउंड्री का मेजरमेंट निकाल के. एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? What is the formula? It is given in the textbook itself, which is sum of the lengths of 3 sides. 3 sides होते हैं, तीनों sides का length plus करना है. That is how you have to find out the perimeter of triangle. And area, I had already explained what is area. And one more important thing, that the unit of measurement area is always found in squares. ठीक है. तो जो भी आपका unit होगा, that will be in squares. फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर फाइंड आउट करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप क्या ऐड कर दोगे, स्क्वायर. ठीक है. आई विल शो यू हाउ आई हैव रिटन. सी, इन दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना था. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो 4 आए आंसर, तो 4 के बाद आपने क्या लिखा है, स्क्वायर. ठीक है. ऑल्सो यू कैन राइट स्क्वायर दिस वे. राइट, आई विल शो यू दिस वे. See, you can see here, I'll zoom in this way. Square, you can, what you can do, 2 लिखोगे बट ऊपर, जैसे 36 लिखा है, सेंटीमीटर जो भी आपका मेजरमेंट क्वेश्चन में दिया होगा, इफ सेंटीमीटर इज दैट यू विल राइट सेंटीमीटर, इफ मीटर इज दैट यू विल राइट मीटर, एंड स्क्वायर मेंशन करोगे. यू हैव टू राइट 2 बट ऊपर जो भी नंबर्स हैं एंड जो भी मेजरमेंट्स है आपके, यूनिट है, उसके ऊपर आप क्या लिखोगे, स्क्वायर. स्क्वायर मतलब 2 लिखोगे, सिंपल 2 लिखना है आपको. ठीक है, सिंपल 2 लिखना है एंड बट ऊपर लिखना है, तो दैट इज स्क्वायर. सो एंड व्हाट इज नेक्स्ट, इन पेरीमीटर वी यूज लीनियर यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, एटसेट्रा. फॉर एरिया वी यूज यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर. यस, तो सिंपल है, जो भी आंसर आएगा पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो जो भी आपका मेजरमेंट में क्वेश्चन दिया है, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर दिया है तो मीटर लिखोगे. बट जब एरिया फाइंड आउट करोगे और जब आंसर लिखते तो आई टोल्ड यू कि आंसर के बाद आप क्या मेंशन करोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ठीक है, या तो ऐसे लिखोगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो फिर लिखोगे 36 एंड देन SQ स्क्वायर एंड देन सेंटीमीटर CM, ऐसे भी आप लिख सकते हो। जैसे ऐसे है ना, 36 आंसर आया तो आप 36 लिखोगे यहाँ पे एंड स्क्वायर सेंटीमीटर SQ CM। ठीक है, this way also you can write. Okay, let's begin with the questions and answers then. Okay, children. So please pay attention while solving the questions and answers. Question number 1 is, how many squares and rectangles are there in the following figures? So before I tell you where is the rectangle, so in your workbook figure also the rectangles drawn in the question is very light. तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से देखो ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये जो आपके वर्कबुक में काफ़ी लाइटली ड्रॉ किया है तो वो आपको दिख नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो आप भी पेन से या फिर पेंसिल से डार्कली ड्रॉ कर दोगे। ओके, सो नाउ आपको काउंट करना है फिगर्स देख के कि कितने स्क्वायर्स हैं, तो स्क्वायर्स के सामने आप स्क्वायर्स लिख दोगे, एंड कितने रेक्टेंगल्स हैं तो रेक्टेंगल्स के बॉक्स में आप रेक्टेंगल के कितने फिगर है वो आप लिखोगे। तो पहले सबसे इजी फर्स्ट, इसमें आप फर्स्ट फिगर इज दिस वन। सो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू सी? ओनली वन, राइट? ओनली वन हाईलाइटेड रेक्टेंगल इज देयर, दिस वन, from here to here and here to here, only one, so you can write it 1. Now how many squares are there? Okay, squares, you know what is a square? Square means where all the four sides are equal, है ना? Square मतलब जहाँ पे चारों साइड इक्वल होते हैं, isn't it? So first this question I'll tell you, I'll also teach you one more technique. The other one is very simple but learn this one also. तो now four sides जहाँ पे equal है वो होता है, उसको आप काउंट करोगे squares। ठीक है, so now अब यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है फिगर, ये है 1, बट इज दिस अ स्क्वायर? Is this a square? You can see this is not a square shape. बट आपको इसको स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर यहाँ पे आपको पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, लाइटली यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपका ये हाफ स्क्वायर, इसका आधा पार्ट है ना, स्क्वायर का एक छोटा सा पार्ट है, इसका हाफ पार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यू हैव टू सी, यहाँ पे बहुत सारे टूटे फूटे पार्ट्स है ना, बहुत ज़्यादा टूटे हुए पार्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको देखना है कि इसका जो हाफ पार्ट है वो कहाँ है ना। फॉर एग्जांपल इसको आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है पेंसिल से। तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप देख पाओगे कि अगर आप ऐसा ड्रॉ करोगे तो ये आपका 1 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली शेप को आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज 1 स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 भी आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट मिसिंग है 2 में, है ना। तो 2 का जो लेंथ है वो थोड़ा सा कर्व्ड हो गया, तो एक छोटा सा पार्ट मिसिंग है यहाँ पे। सो ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको कट, यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया, यहाँ पे 2 लिखा है, एक छोटा सा बॉक्स है। सो ये पार्ट अगर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, इफ़ यू ऐड दिस पार्ट इनटू हियर यू विल गेट अ 1 मोर स्क्वायर। तो दिस इज़ 1 स्क्वायर, both of this is 1 square, this is 2 square and this is 3 square. Yes, it is exactly the 3 square. इसमें आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा कट करने की ज़रूरत है ना। If you just draw this line from here if you draw the line you will get 3, the whole the complete square of 3, है ना। फोर्थ में भी if you see one more edge, see इतनी edge missing है जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ की है ना। So fourth is missing, तो ये पार्ट आपको कहाँ मिल जाएगा? Let's see, yes this part, ये इतना छोटा सा मिसिंग था, तो ये एडिशन इफ वी डू हियर दिस विल बी द 4th स्क्वायर, है ना। 5th स्क्वायर इफ आई सी दिस इज 5th, so you can see I've drawn from pencil, if you can see I've zoomed in also. So if you can see this is half part of the square, you need more parts to make this a complete square. So which more part can you add? If you add this part here, this will be the 5th square, है ना। Now 6th is full square, चारों साइड इक्वल है, दैट इज़ वाई 6th इज द फुल स्क्वायर। 7th भी फुल है, 8 भी फुल स्क्वायर है, 9 भी फुल स्क्वायर है। नाउ 10 इज हाफ ओनली, है ना। 10 का आपको छोटा सा पार्ट मिसिंग है, सो दिस पार्ट इफ यू ऐड हियर 10 विल बी कंप्लीट। नाउ 11 इज ऑल्सो हाफ, आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 11th का पार्ट वेयर इज इट? हियर। इफ यू ऐड दिस एंड दिस वन दिस विल बी 11th स्क्वायर। 12 square, it is complete, you can see all the square, it is a complete square। 13 भी full complete square है, 14 भी full complete है, 15 भी full complete है, 16 also, 17 also, 18 also, 19, if you see 19 का भी एक छोटा सा पार्ट मिसिंग है ना, छोटा सा पार्ट मिसिंग है। सो इफ़ यू ऐड दिस पार्ट हियर, है ना, एक
छोटा सा यहाँ पे एंडिंग पार्ट ही मिसिंग है ना. सी दिस पार्ट इज वेरी सिमिलर. इफ यू ऐड दीज टू पार्ट्स 19 square will be completed. 20 is already full completed. 21 square is also completed. 22 is also completed. 23 and 24 and 25 is also completed. Now these are very small parts, and now we see 26. 26, here we need one more part to make a complete square. So if you add this figure and this figure, this will be 26 complete square. 27 also a little much is remaining है ना. Here you need a little part to make this 27 also complete square. So if you add this figure here, 27 figure will be completed. Now 28 one also you need a one more figure here. So if you add this figure over here, 28 figure will also be completed. So now बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ना. आपको क्या करना है, स्क्वायर्स, जो फुल स्क्वायर्स है वो तो आप काउंट कर सकते हो, बट जो हाफ स्क्वायर्स है उसके पार्ट्स को ढूंढना, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग वन. यू कैन फाइंड इट आउट है ना. 5 का ये पार्ट है, ये पार्ट मिसिंग है, यहाँ से आप जोड़ दो, 5 का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा. बट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग वन है ना. बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एग्जाम में, आप पार्ट्स ढूंढते रह जाओगे कहाँ हैं पार्ट्स. तो नाउ वी काउंटेड वन रेक्टेंगल एंड टोटल कितने स्क्वायर्स हमारे बन रहे थे, 29. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नो देखो यहाँ तक 28 हो गया है, एंड हाउ 29 इज नाउ. आपके जो सारे पार्ट्स तो हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट ये दो जो फिगर है, ये दो एंड दिस वन, ये तीन जो फिगर्स है, इन तीनों को मिला के एक स्क्वायर बन जाता है. तो दैट इज़ वाई जोड़ जोड़ के 28 बन गए, एंड इन तीनों को जोड़ के वन मोर स्क्वायर बन जाता है. सो इसलिए 28 + 1 विच विल बी 29. तो दिस नाउ यू कैन सी बहुत टाइम लग रहा है. आपको फाइंड आउट करना है, पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं कि इसका कौन सा पार्ट होगा, वन का कौन सा पार्ट कहाँ होगा. सो ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो आई विल टेल यू अ शॉर्टकट टू डू दैट. ठीक है. If you can do it faster, it's good, but shortcut is also very simple. You know how you can do this shortcut is, सबसे पहले आपको क्या करना है, फुल स्क्वायर्स, जो भी फुल स्क्वायर्स है ना, if you can see, so understand this shortcut very easy है. So if you understand it, आप बहुत simple way में कर लोगे. So now you can see कि कुछ फुल स्क्वायर्स है ना, जो कंप्लीट स्क्वायर्स है वो काफ़ी सारे हैं, एंड कुछ क्या है, हाफ स्क्वायर्स है जिनके टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं, और उनको हमें जोड़ के एक स्क्वायर बनाना पड़ रहा है ना. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फुल स्क्वायर्स ढूंढोगे. तो फुल स्क्वायर्स के ऊपर आप नंबर्स लिख के सॉल्व कर दोगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हियर विल स्टार्ट, जो फुल स्क्वायर है, आप देख सकते हो कि ऊपर के सारे पार्ट्स फुल नहीं है ना, कोई भी पार्ट्स फुल नहीं है. तो आप क्या करोगे, यहाँ से कैलकुलेट करोगे. ठीक है. आप जो भी फुल है, ये वाला फुल स्क्वायर है ना, दिस वन 6th जहाँ पे मैंने लिखा है ये फुल स्क्वायर है. तो फुल स्क्वायर ही सिर्फ हम काउंट करना है. अभी ध्यान से देखना, सिर्फ जो फुल स्क्वायर है, जो भी थोड़े से भी कटे हैं ना, फॉर एग्जांपल 4 में भी ये थोड़ा सा हमें चाहिए पार्ट, ये फुल स्क्वायर नहीं है, तो हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं. डायरेक्टली 6 1 वी आर काउंटिंग द 6th वन. तो 1 इज फुल स्क्वायर, दिस इज 1 2 3 4. इसको हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज 10 का भी एक टुकड़ा कहीं और है ना. सो वेर आर वी, 1 दिस वाज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, है ना. ये सारे फुल स्क्वायर थे, जिसके मतलब फुल्ली, जिसके पार्ट्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए नहीं है. ये कंप्लीट स्क्वायर है जो आपको क्लियरली दिख रहा है. तो टोटल स्क्वायर्स कितने, मैंने ना इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल से. सो टोटल फुल स्क्वायर्स, आई फॉरगॉट टू राइट फुल हियर. ठीक है. टोटल फुल स्क्वायर्स आर 17, है ना. तो आपने फुल स्क्वायर्स का कैलकुलेट किया, कितने आए आपके, 17 स्क्वायर्स हैं. अब ये आपके टुकड़े भी आपको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. तो आपको ये देखो, ये छोटा सा है, इसको भी नहीं छोड़ना है हमें. ये जो छोटा सा 2 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, वर्कबुक में इट इज़ वेरी क्लियर, बट यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा हो, बट यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर है, बहुत मतलब पार्ट है, नॉट स्क्वायर, छोटा सा पार्ट है, तो वो भी आपको काउंट करना है. सो वी विल स्टार्ट काउंटिंग. दिस वन इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and this little part 24. तो ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं या जो भी स्क्वायर्स के जिसके छोटे पार्ट भी मिसिंग हैं वो पूरे मिला के कितने हुए 24. तो यू विल राइट हाफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 24. ठीक है. तो नाउ व्हाट यू विल डू, ये जो हाफ स्क्वायर्स हैं 24, हाफ कितने थे 24 स्क्वायर, नॉट हाफ स्क्वायर्स, हाफ पार्ट्स ऑफ स्क्वायर्स. ठीक है, हाफ पार्ट्स ऑफ स्क्वायर्स. सो हाफ पार्ट्स ऑफ स्क्वायर्स वर 24. सो नाउ व्हाट यू विल डू, 24 को 2 से डिवाइड कर दोगे. If you divide 24 divided by 2, what you will get 12, है ना. So now total squares जो आपने काउंट किए थे, जो फुल स्क्वायर्स थे वो थे आपके 17 एंड हाफ स्क्वायर्स आपके अपने जो पूरे टुकड़े जो पार्ट्स है उसको कैलकुलेट किए वो कितने थे 24. एंड 24 को 2 से डिवाइड करना है, यू विल गेट 12 आंसर्स, है ना. यू विल गेट द आंसर 12. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टोटल स्क्वायर्स प्लस जो टोटल हाफ स्क्वायर्स आया आपका आंसर दिस वन 12, वो आपको प्लस करना है. सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स वर 17 एंड टोटल नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स आफ्टर डिविजन, ये जो आंसर आया आपका 12. 17 प्लस 12 यू विल डू व्हाट यू विल गेट 29. सो ईजी हो गया आपको. पहले आपको क्या करना है, सिंपली आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, जो फुल स्क्वायर्स है वो आपको काउंट करके लिख देना है. टोटल स्क्वायर 17, टोटल हाफ स्क्वायर्स मतलब पार्ट्स ऑफ स्क्वायर्स जो टुकड़े हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो सारे आपको काउंट करना है, वो लिख देना है 24. जो हाफ स्क्वायर्स है उसको डिवाइड करना है 2 से. जो आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है. किससे प्लस करना है, जो टोटल फुल स्क्वायर्स थे उससे प्लस करना है. सो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच विल बी 29. ओके, दिस वन अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, दिस इज द फिगर नाउ. ठीक है, हियर आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन डायरेक्टली, आपको पार्ट्स नहीं बताएं. ठीक है, फर्स्ट वन इज वेरी कॉम्प्लिकेटिंग, है ना, पार्ट्स ढूंढने पड़ते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है. तो सॉल्व करना इज ऑलवेज ईजी इन मैथमेटिक्स. सो नाउ हियर वी विल सी टोटल स्क्वायर्स. आई हैव रिटन हियर clearly. Total full squares are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total full squares, right? Full here, huh? Total full squares is equals to 8. Now you have to count half squares. Okay, half parts of squares. So what is it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए आपके हाफ स्क्वायर्स के 16. टोटल स्क्वायर्स वर 8, हाफ स्क्वायर्स वर 16. अब क्या करना है 16 के साथ, आपको 16 डिवाइडेड बाय 2 यू हैव टू डू. व्हाट विल बी द आंसर, 8 विल बी द आंसर, है ना. 16 को आप 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर 8. अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, टोटल स्क्वायर प्लस टोटल हाफ स्क्वायर विच इज इट 8 प्लस 8. 8 plus 8, what is it? 16. So you'll write 16 squares and rectangle कितना है? Only one rectangle. Sorry. Only one rectangle है ना? Only one rectangle. So you will write here 1. Clear children? Again I'm explaining you one more time. टोटल स्क्वायर्स जितने हैं जो क्लियरली आपको दिख रहे हैं, जिसके चारों साइड्स हैं, कहीं से भी कटा नहीं है, छोटा सा भी कटा नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको फुल स्क्वायर कंसिडर करोगे एंड यू विल काउंट इट. टोटल स्क्वायर यहाँ पे 8 था. हाफ स्क्वायर्स मतलब जिनके हाफ पार्ट्स है, तो ये सारे पार्ट्स को आपने काउंट किया, वो थे 16. जो हाफ स्क्वायर्स है उसको आपको डिवाइड करना है 2 से. तो जब आंसर आएगा आपका डिवाइड करके 2 से, वो आंसर को प्लस करना है जो फुल स्क्वायर्स थे उससे. तो हाफ स्क्वायर्स डिवाइड करने के बाद आपका आया 8 एंड फुल स्क्वायर थे 8, तो 8 प्लस 8 आंसर आया 16. ओके, क्लियर टू एवरीवन? नाउ द थर्ड फिगर इज ऑल्सो वेरी सिंपल, but here you will notice how many rectangle is there. 2 rectangle, one here, one here. 2 rectangles are here. And how many squares are there? Here no half squares are there, है ना. काटा नहीं है कोई भी स्क्वायर को, there is no division, curved नहीं है, ना कट किया हुआ है. So simply you have to count all these squares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, like that you have to count it and then you have to write the numbers. So आप देखो मेरा ऑलरेडी आ चुका है 36. You just see if आपका भी 36 आता है कि नहीं. Here we don't have to use any formula, है ना. Why? Because there are no cut squares. कट पार्ट्स नहीं है, तो इसलिए आपने सिंपली यहाँ पे सॉल्व किया. ये जो मैंने सॉल्व किया वो इस फिगर का है, ये जो सॉल्व किया वो इस फिगर का. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन पेज नंबर 14.
Now question number 2 is find the areas of the following regions in terms of square unit by counting numbers of squares. अगेन अभी आगे वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. क्या है, एरिया फाइंड आउट करना है. आपको तो फॉर्मूला भी नहीं देना है, दिया हुआ है. बस आपको सिंपली क्या करना है, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन फर्स्ट फिगर? 1 2 3 4. हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 4. बट हाउ यू विल राइट इट इन द आंसर? स्क्वायर यूनिट. वाई? बिकॉज इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन. यू हैव टू आंसर इन स्क्वायर यूनिट. तो क्वेश्चन में मेंशन है तो आप भी लिख दोगे SQ यूनिट. How many squares are in this figure? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 square unit. Why? Because it is mentioned in the question. This you have to count it and write it. Let's move on to the question number 3, which is find the area of each of the following regions. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है रीजन का, अगेन बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स. ठीक है, सो नाउ हियर अब यहाँ पे ना आपको प्लेनली कट किया हुआ है पार्ट्स, है ना. ऐसा नहीं है, कर्व्ड नहीं है, ना टेढ़ा मेढ़ा काटा हुआ है, एकदम एग्जैक्टली कट किया हुआ है. इफ़ यू जॉइन दीज टू ट्राइंगल्स, इफ़ यू जॉइन दीज टू ट्राइंगल्स, ये स्क्वायर बन जाएगा. फॉर एग्जांपल इफ़ दिस फिगर है ना, ये वाला जो फिगर है, ये वाले फिगर, ये दोनों आप जोड़ते हो. ठीक है, ये जो पार्ट है ना, इसको आप लेकर यहाँ पे जाओगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, है ना. सो अगर आप ऐसे, तो फुल स्क्वायर आ कितने, 1 and 2. एंड ये दो स्क्वायर को मिला के हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर को मिला के हो जाएगा 4 स्क्वायर, है ना. अगर आपको ये नहीं समझ रहा तो अगेन आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यू विल राइट फुल स्क्वायर्स. हाउ मेनी फुल स्क्वायर्स आर देयर? पूरे फुल स्क्वायर्स कितने हैं? 1 and 2. 2 फुल स्क्वायर्स आर देयर. हाफ स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4. हाफ स्क्वायर्स आर 4. एंड 4 को आपको क्या करना है? डिवाइड बाई 2. 4 को डिवाइड करोगे 2 से, आंसर क्या आएगा आपका? 2. तो टोटल स्क्वायर इज 2, और जो डिवाइड के आंसर वो भी आया 2, तो 2 + 2 विल बी 4. ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट पेज पे सिखाया फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट ऑल्सो यू कैन यूज़. बट हियर इट इज़ वेरी इजी. दो इक्विलैटरल ट्राइंगल है. इफ़ यू जस्ट जॉइन, ये आप कट करके इधर जोड़ देते हो तो आपका एक स्क्वायर हो जाएगा. ये कट करके यहाँ जोड़ देते हो तो एक स्क्वायर हो जाएगा. तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आता है? 1 2. दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4. ठीक है, तो जो इजी है उसको आप देख कर ही सॉल्व कर लो. जो हार्ड लग रहा है, जैसे आपको देखो ये वाले फिगर, where is it? Yes, this figure, है ना. So confusing. You have to join this one, find out where is the other part exactly. So that is confusing one. So there you can use formulas, है ना. जो कहाँ पे curves यूज़ किए हैं वहाँ पे formulas यूज़ करो. जहाँ पे triangles यूज़ किए वहाँ पे देख के imagine करो. दो triangle को मिला दोगे तो square बन जाएगा. ठीक है, that you memorize it. This figure also if you see, now here if you see this figure, full squares are 1 2 3 4 5 6. ये आपके फुल स्क्वायर्स है 6. ये दो ट्राइंगल मिला के 7, ये दो ट्राइंगल मिला के 8, है ना. इजी है. ट्राइंगल्स दो, हाफ ट्राइंगल है तो दो ट्राइंगल को ऐड करके एक स्क्वायर कंसिडर करो. फुल है तो हम फुल कंसिडर करेंगे. ठीक है, फुल स्क्वायर 6 थे, ये दो ट्राइंगल मिला के 7 हो गए, ये दो ट्राइंगल मिला के 8 हो गए, तो 8 स्क्वायर यूनिट. नाउ दिस वन ऑल्सो फुल स्क्वायर इज 1 2 3, एंड देन ये दो ट्राइंगल मिला दो, क्या हो गया? 4. तो 4 स्क्वायर यूनिट. क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स बाय ड्रॉइंग यूनिट स्क्वायर्स इन देम. ठीक है, आपको क्या दिया है? रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड यू हैव टू ड्रॉ स्क्वायर्स इन बिटवीन. तो आई हैव ड्रॉन like this. You can also draw more or you can also draw less. ठीक है, बट अंदर क्या करना है आपको? स्क्वायर्स ही बनाने हैं. ठीक है, सो एंड व्हाट यू हैव टू डू, स्क्वायर्स बनाने के बाद आपको वो स्क्वायर्स को काउंट करना है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 लाइंस बीच में ड्रॉ की. ठीक है, लेंथ से भी 3 लाइंस ड्रॉ किए, ब्रेथ से भी 3 लाइंस ड्रॉ किए. आप मोर ड्रॉ कर सकते हो, 4 ड्रॉ कर सकते हो, आप लेस ड्रॉ कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक इट अ स्क्वायर. ठीक है, सो एंड देन आफ्टर मेकिंग अ स्क्वायर आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. कितने बॉक्सेस हो रहे हैं? 16 बॉक्सेस हो रहे हैं. तो कितना हो गया आंसर? 16 स्क्वायर यूनिट. हियर ऑल्सो आई हैव ड्रॉन. आफ्टर ड्रॉइंग यू हैव टू काउंट द नंबर्स. अब ये मेरी ड्रॉइंग है इसलिए यहाँ पे 20 स्क्वायर यूनिट है. सो आप जब ड्रॉ कर रहे हो तो आप देख लो, अगर आप 3 लाइन्स ही यूज़ कर रहे हो तो आपका यही आंसर आएगा. बट अगर आप अलग से ड्रॉ कर रहे हो, एक्स्ट्रा लाइन्स, एक्स्ट्रा बॉक्सेस बनाते हो, तो योर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू दैट. सो जैसे भी आप डायग्राम बना रहे हो, ड्रॉ योर्स एंड देन काउंट द बॉक्सेस एंड देन राइट द आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स.
ठीक है. Now again your following figure is given, not the whole figure we have to see. This figure which I have drawn with black pen. See, that you have to find it out. ठीक है. तो how you will find it out? Now बस again simple है, boxes count करने हैं. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना. 11 स्क्वायर है, 11 लिख दिया, बट एक हाफ है एंड इसका हाफ हम जोड़ भी नहीं सकते कहीं से. तो हमने क्या किया, बिकॉज इतने ही फिगर का हमको जॉइन, वी हैव टू फाइंड द एरिया, राइट. सो 11.5 स्क्वायर यूनिट विल बी योर आंसर. सिंपल है, बॉक्सेस काउंट कर दिया, ये हाफ ही था तो करेक्ट एग्जैक्ट हाफ है ना ये स्क्वायर का, एग्जैक्ट हाफ. सो दैट इज वाई 11.5 स्क्वायर यूनिट यू विल राइट द आंसर. नेक्स्ट वन इज दिस फिगर B1. हाउ मेनी yes, how many what is the area of this? You will have to what, count the squares again. Now here you will see 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 square unit. How 6? Now this is incomplete है ना, you need a more half and this is there. तो आपने क्या करना है, इन दोनों को एक कंसिडर करना है, इन दोनों को दूसरा कंसिडर करना है. So 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 square unit will be your answer. Now the next one, yes, next figure is this one. Okay, see this now. Okay, full square is 1 2 3 4 5 6. 6 squares. इन दोनों triangles को मिला लो, it will be 7 square. इन दोनों triangles को मिला लो, it will be 8 square. ठीक है, this two triangles join it and it will be the 8 square. Answer will be 8 square unit. Next is this one. Okay, next to this one. Okay, so what is it? Consider this as 1. Okay, join these two, this will be your consider these two, this will be a 1 figure. Consider this 2, this will be your 2 figure, and then 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, both will be, this is 11, this is 12. ठीक है, दोनों को जोड़ के तो आंसर will be 12 square unit. Let's move on to the question number 6, which is write the number of squares enclosed by each figure and find its area. Take the area of each square as 1 centimeter square. अब आपको मेंशन क्या बताएं क्वेश्चन में, you have to count the number of squares. ठीक है, फुल फिगर में जितने भी स्क्वायर्स है you have to count the number of squares. एरिया आपका मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका. बट एंड ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब जब आपका एक ये स्क्वायर बनता है तो ये स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपका जो भी आएगा आंसर विच विल बी, फॉर एग्जाम्पल 18 आया तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट हाउ इट इज 18. सो first we will count the squares, the full squares. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 full squares हैं. Now ये दो मिला के 16 हो गया, ये दो मिला के 17 हो गया, ये दो मिला के 18 हो गया. You will write 18 and then centimeter square you have to write. Now this one will be your homework. Why homework? Because see, simple squares हैं, ना आपको दिमाग लगाना है ना कुछ लगाना है, सिर्फ आपको काउंट करना है एंड जितने बॉक्सेस आएंगे उतना आपको आंसर लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है. डोंट राइट 18 ना, गलत भी हो सकता है. सो जस्ट काउंट बाय योरसेल्फ एंड देन यू राइट द आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द C1. सी में भी सिंपल था, काउंट करना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज इफ़ यू काउंट ऐसे प्लस में तो आई डोंट वांट यू टू काउंट दिस बॉक्स अगेन, है ना. 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4 हो गया. अब यहाँ से आप फिर से नहीं काउंट करने लग जाओ, आई डोंट वांट यू टू मेक सिली मिस्टेक्स, तो ये भी बता दिया आपको. नाउ आई डू दिस वन बाय योरसेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे फुल बॉक्सेस भी हैं एंड देन हाफ बॉक्सेस भी हैं, मतलब हाफ ट्राइंगल्स. सो आपको कैसे मैंने सिखाया है, यू नो दैट. सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दिस वन एंड डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, so question number 6 is also completed. Let's not completed, 6 is also homework. Let's turn the page number 17. Okay, now page number 16, page number 16. Now these figures. Okay, अब ये यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है बिकॉज कर्व्ड यहाँ पे आ गए एंड ट्राइंगल्स में जहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना,
तो वी फेस ट्रबल्स ऑलवेज. वाई? बिकॉज आई एम सेइंग, देखो यहाँ प्रीवियसली जो भी फिगर्स थे वहाँ पे एग्जैक्टली ट्राइंगल्स कट थे, है ना, एग्जैक्ट इक्वलैटरल ट्राइंगल. जितना ट्राइंगल कट है दूसरे जगह आप देखोगे उतना ही ट्राइंगल कट है, तो आप उसको ज्वाइन करके स्क्वायर बना सकते थे. बट इफ यू नोटिस हियर, यहाँ पे देखो ये, ओके आई विल शो यू हियर. यहाँ पे सो इफ यू सी दिस शेप एंड दिस शेप, ये तीनों अलग अलग शेप के हैं. ये भी अलग शेप का है, ये भी अलग शेप का है, ये भी अलग शेप का कटा हुआ है, ये भी अलग शेप का कटा हुआ है. तो जब अलग अलग शेप्स में आप देखते हो ना, तब आप वो वाला फॉर्मूला यूज़ करो जो मैंने आपको सिखाया है. इफ़ यू सी सर्कुलर शेप ऑल्सो, तो यहाँ पे देखो ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है. जब शेप्स अलग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इक्वली स्क्वायर्स नहीं है एंड सारे शेप्स अलग अलग हैं, तो वो फॉर्मूला यूज़ किया करो जो सिखाया है. तो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द बोथ द क्वेश्चंस. या वेरी सिंपल. ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ, सेम ही एक्सप्लेनेशन है, तो बार बार बता रही हूँ, अब बार बार सुनो, आपको समझ आ जाएगा एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व एन एग्जाम. एंड बहुत जल्दी भी हो जाता है ना. तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बॉक्सेस काउंट करना है जो फुल बॉक्सेस हैं. सी हैव रिटन टोटल फुल स्क्वायर्स. तो टोटल फुल स्क्वायर्स के आप देखो, आप ये वाला स्क्वायर ध्यान से देखो. ठीक है, ये वाला स्क्वायर आपको स्क्वायर तो लग रहा है, बट आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे एक छोटा सा एज मिसिंग है, एक छोटा सा एज. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यू नीड वन लिटिल एज हियर टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर. इधर भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या ये स्क्वायर है क्या? नहीं ना. आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर के लिए, यहाँ से एक ड्रॉ करना पड़ेगा पेंसिल से, छोटा सा एक एज चाहिए, तब आपका फुल स्क्वायर होएगा, है ना. तो आप ध्यान से देखना. तो इसीलिए फुल स्क्वायर जो आपको पता है वो आप कैलकुलेट करो. दिस इज़ द फुल स्क्वायर, जहाँ पे मैंने 1 लिखा है ना. दिस इज़ 1 फुल स्क्वायर एंड देन दिस इज़ 2 फुल स्क्वायर, 3 फुल स्क्वायर, 4 फुल स्क्वायर, 5 फुल स्क्वायर, 6 फुल स्क्वायर, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and then 22 23 24. तो टोटल फुल स्क्वायर्स जो कहीं से भी नॉट इवन और स्लाइटेस्ट एडजस्ट कट, कितने स्क्वायर्स है टोटल फुल स्क्वायर्स कितने हैं? 24. टोटल फुल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 24. नाउ व्हाट यू हैव टू काउंट? हाफ स्क्वायर्स. हाफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, चलो लेट्स काउंट हाफ स्क्वायर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Wait, I did a mistake. Let's just count again, one more time. So where am I? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17, so the previously counting में mistake हो गई. So 17 only, I have counted it twice, so 17. Okay, so how much these are? 17. Half squares कितने हैं? 17. So what you will write? Just a minute. Yes, what you will write? Half squares is equals to 17. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो हाफ स्क्वायर्स है उसको क्या करना है मैंने बताया था, हाफ स्क्वायर्स को डिवाइड बाय 2 करना है. तो हाफ स्क्वायर्स डिवाइड बाय 2 व्हेन यू विल डू, यू विल गेट 8.5 एज एन आंसर. यू हैव टू डू द डिविजन प्रॉपर्ली. यू विल गेट व्हेन यू विल डू द डिविजन, आई होप यू नो you have reached 5th standard, so little division you can do it. So 17 divided by 2 if you do, you'll get the answer 8.5. Now what you have to do, you have to count total square, add total full squares plus total half squares. So total full squares was 24, तो 24 plus half squares का आंसर क्या है डिविजन के बाद? 8.5. तो 8.5, 24 plus 8.5 and you will do, you will get 32.5. तो 32.5 centimeter square. Now this is your figure again. I'll explain you by counting. Hold on. Yes, let's just count the full squares. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Total squares is equals to 27. Now half squares we need to count. What is it? I'm pointing and counting, so you just see the whole video. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. हाफ स्क्वायर्स आर 18. हाफ स्क्वायर्स को क्या करना है? डिवाइड बाय 2 करना है. इफ़ यू डिवाइड 18 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट द आंसर 9. नाउ व्हाट यू हैव टू डू,
टोटल स्क्वायर 27, हाफ स्क्वायर का आंसर जो है +9, 27 + 9 you will get 36. Answer will be 36 centimeter square. Okay. Now question number 7. Very simple question. What is it? Join the dots to make 2 triangles, 2 squares and 2 rectangles. Name them, color them. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 triangles, 3 squares and 3 rectangles बना दिए हैं, ठीक है. But I haven't named it. You have to name them, you have to color them. आपकी मर्जी से आप कलर करो, ड्रॉ करो. आप अलग अलग ट्राइंगल बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सी आई हैव ड्रॉन 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल here. यहाँ पे ये वाला, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइंगल ना. Okay, where 2 sides are same. No, this is also equilateral. So so I have drawn 3 triangles. See, अलग अलग तरीके से ट्राइंगल बना है. स्क्वायर्स तो एक ही तरीके से बना सकते हो, 4 sides equal होनी चाहिए. एंड रेक्टेंगल्स 3 I have drawn. See here. So don't draw like mine. You just have to draw 2 triangles, 2 squares and 2 rectangles. आपको ये dots join करने हैं, but dots join करते गए आपको क्या करना है, 2 triangles, 2 squares, 2 rectangles and you have to name them and color them. तो color आप अपने मर्जी से कर दो and name them. How you will name them? You will name them A, B, C. edges को आप नाम दे दो A, B, C, D for, और या फिर P, Q, R, S ऐसे आप नाम दे सकते हो. And any name you have to give them. ठीक है. So just make 2 triangles, 2 squares, 2 rectangles. Anyways, आप अपने मर्जी से अपने हिसाब से बनाओ. Okay. So here our chapter ends. So just do your homework well. And this formula is very simple. Shortcut में बताया है because otherwise आपको ढूंढते रहना पड़ेगा. इसका पार्ट कहाँ है, उसका पार्ट हाफ पार्ट कहाँ है. So this way आप क्या करोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा. So this is the easiest way. Count the full squares, काउंट द हाफ स्क्वायर्स को डिवाइड करो 2 से, जो आंसर आएगा उसको फुल स्क्वायर्स के साथ प्लस कर दो. सिंपल. Okay, so this is how you have to solve it. So do the homework, learn these steps and also write these things in your class notebook. Okay, so take care of yourself, children. Thank you for listening. Take care of yourself. Bye bye.